Hello students, today we are starting the chapter 18 Sound, Production of Sound. Fill in the blanks. A. Sound is generated by the rhythmic dash of an object. So answer is sound is generated by rhythmic vibration of an object. Vibration is to and fro or back and forth motion. B. The frequency of sound is measured in dash. So answer is the frequency of sound is measured in hertz. Hertz is the unit of sound. C. If dash of sound is decreased, its loudness also decreases. So answer is if amplitude of sound is decreased, its loudness also decreases. Amplitude is the measure of the size of the sound wave. D. A medium is necessary for dash of sound. So answer is a medium is necessary for propagation of sound. Propagation means movement. Second, match the pairs. इसमें ग्रुप A है और ग्रुप B है. जो ग्रुप A के वर्ड्स हैं हमें उन्हें मैच करना है ग्रुप B के वर्ड्स. A is flute. So the answer is flute produces vibrations in the air. B is frequency. So the answer is frequency is measured in hertz. C. Sound level. So the answer is decibel. D. Ultrasonic sound. So the answer is frequency more than 20,000 hertz. Ultrasonic sounds are high frequency sound waves. E. Infrasonic sounds. So the answer is frequency less than 20 hertz. Infrasonic have low frequency sound waves. Specific reasons. A. In earlier times, people used to listen for the arrival of a distant train by putting their ear to the rail. मतलब पहले के टाइम में लोग क्या करते थे, ट्रेन का आने का कैसे पता करते थे, अपने कान लगा लेते थे पटरी के पास. पर इसके पीछे रीजन क्या होता था? So the answer is, in earlier times, people used to listen for the arrival of a distant train by putting their ear to the rail because they knew that the sound traveled faster through solids than gases. Thus, by putting their ear to the rails used to give them the idea of the arrival time of a train in advance. अब इसके पीछे रीज़न ये है कि जो सॉलिड्स होते हैं उसमें मॉलिक्यूल्स बहुत पास होते हैं और बहुत टाइटली बाउंड होते हैं ईच अदर से. इसलिए लेस टाइम लगता है टू पास ऑन द साउंड वेव टू ईच अदर. इसलिए उसमें साउंड फास्टर ट्रैवल करती है एज कंपेयर टू द गैसेस. गैसेस में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, इसलिए साउंड को ट्रैवल करने में एक मॉलिक्यूल से दूसरे से तीसरे ट्रैवल करने में ज्यादा टाइम लगता है. Thus, it is easier for sound to travel faster in solids. Sound generated by tabla and sitar are different. अब इसका आंसर क्या है? Due to the difference in the pitch and frequency, the sound produced by a tabla and sitar are different. क्योंकि इन दोनों की पिच और फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है तो साउंड भी जो प्रोड्यूस होगी वो डिफरेंट होगी. मतलब तबले से एक अलग, जब आप तबले पे मारते हो तो एक अलग साउंड प्रोड्यूस होगी और जब आप एक सितार बजाते हो तो एक अलग साउंड प्रोड्यूस होगी. क्योंकि पिच और फ्रीक्वेंसी का फर्क है, इस वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो भी डिफरेंट होगी. C. If you were both on the moon, your friend will not be able to hear you call. अब इसका मतलब यह है कि अगर आप और आपके फ्रेंड मून पे हैं तो क्या आपके फ्रेंड आपकी आवाज सुन पाएंगे? क्या मून पे ऐसा क्या नहीं है जो अर्थ पे है कि हमें अर्थ पे तो सुनाई देता है लेकिन मून पे हमें सुनाई नहीं देता? So the answer is, we know that sound cannot travel through vacuum. Since there is no atmosphere on the moon, so we cannot hear the sound on moon. अब हमें एक चीज बहुत ही क्लियरली पता है कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए हमेशा एक मीडियम की जरूरत होती है. तो मीडियम वो क्या होता है? एयर होता है. लेकिन जो स्पेस होता है वहां पे कोई भी एयर नहीं होता, मतलब कोई भी मीडियम नहीं होगा आपका साउंड को ट्रैवल करने में.
और अर्थ पे हमें इसलिए सुनाई देता है क्योंकि अर्थ पे एक मीडियम है, वो है एयर। और वो हमें साउंड क्यों सुनाई देती है? वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जो एयर मॉलिक्यूल्स है उनके वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। इसलिए आपको मून पे सुनाई नहीं देगा, और यही इसका रीजन है कि अर्थ पे आपको सब सुनाई देता है लेकिन मून पे आपको नहीं सुनाई देगा। अब क्वेश्चन नंबर डी, वी कैन हेयर द मूवमेंट ऑफ ए मॉस्किटो विंग्स बट वी कैन नॉट हेयर द मूवमेंट ऑफ आवर हैंड्स। इसका मतलब जब मॉस्किटो बन की आवाज करता है अपने विंग्स हिला के तो वो हमें सुनाई देता है, लेकिन अगर हम अपना हाथ का मूवमेंट करते हैं तो हमें सुनाई नहीं देता। इसका आंसर क्या है? The frequency of sound produced by the movement of mosquito wings is in the audible range of humans, whereas that produced by the movement of our hands fall in the inaudible range. Due to this reason, we can hear the movement of a mosquito wings but cannot hear the movement of our hands. अब इसका मतलब flapping of wings by mosquito produces high frequency vibration, जो कि ऑडिबल रेंज में होता है। अब हमें पता है कि 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी को हम नहीं सुन सकते और 20 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी को हम सुन सकते हैं। मॉस्किटो विंग्स से जो मूवमेंट होता है उससे जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है वो 20 हर्ट्ज से ऊपर होती है, जो कि हमारे ऑडिबल रेंज में होती है, इसलिए हमें सुनाई देती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। A, how is sound produced? मतलब साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है? So the answer is the back and forth movement of an object produces sound. An object moving back and forth is said to be in vibration. Hence sound is produced by vibrating objects. इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट करते हैं तो वो हमारे जो सराउंडिंग मीडियम में पार्टिकल्स होते हैं उनको भी वाइब्रेटिंग मोशन में ले आते हैं, और ये पार्टिकल्स वाइब्रेट करने पर नियर बाय पार्टिकल्स को भी वाइब्रेट कराते हैं। इसी तरह साउंड प्रोड्यूस होती है। मेनली जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट्स से होती है। बी पार्ट, व्हाट डज द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड्स डिपेंड ऑन? मतलब जो इंटेंसिटी होती है साउंड की वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? द आंसर इज intensity of the sound depends on the amplitude of vibration of the sound. इसका मतलब जो intensity of sound होती है वो डिपेंड करती है आपके एम्पलीट्यूड पर। अब ये एम्पलीट्यूड क्या होता था? इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल करते थे अपनी मीन पोजीशन से जब साउंड प्रोड्यूस होती है। इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द साउंड। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड पे। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा लाउडर विल बी द साउंड प्रोड्यूस्ड। नाउ कमिंग टू द सी पार्ट, एक्सप्लेन हाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज रिलेटेड टू द लेंथ ऑफ ए पेंडुलम एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स ऑसिलेशन। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कैसे रिलेटेड है लेंथ ऑफ पेंडुलम से और एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स ऑसिलेशन। आंसर, as the length of a pendulum increases, the frequency of the oscillation decreases. जैसे जैसे लेंथ बढ़ता है पेंडुलम का, the number of oscillation जो पर सेकेंड में होते हैं वो डिक्रीज करते हैं। इसका मतलब frequency of oscillation डिक्रीज करती है। So that means as the length of pendulum increases, the number of oscillation in 1 second decreases. The frequency of oscillation is not much affected by the amplitude of oscillation. जो frequency of oscillation होती है वो amplitude से ज़्यादा affect नहीं होती। मतलब अगर amplitude बढ़ता है या घटता है तो frequency of oscillation पर फर्क नहीं पड़ता। Now the D part. Explain the two ways by which the pitch of the sound generated by a stretched string can be changed. तो हमारा क्वेश्चन था कि कौन से दो वेज हैं जिससे कि पिच ऑफ द साउंड जनरेटेड बाय अ स्ट्रेच स्प्रिंग चेंज हो सकती है। सो द आंसर इज फ्रीक्वेंसी और द पिच ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग कैन बी चेंज बाय वेयरिंग द फर्स्ट टेंशन इन द स्ट्रिंग।
If the string of the instrument is under high tension, the pitch of the note produced on plucking the string will be high. That is, the note will be shriller because of the frequency of vibration of the string will be high. अब टेंशन क्या होती थी? टेंशन refers to how tightly हमने string को stretch किया है. Tightening of the string gives higher frequency. मतलब जितना ज़्यादा हमने स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया है उतना उसमें ज़्यादा टेंशन क्रिएट होगा और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी या ज़्यादा पिच हाई होगा. नाउ सेकेंड इज द थिकनेस ऑफ द स्ट्रिंग. If the string of the instrument is thin, then the pitch of the note produced on plucking the string will be high as frequency of vibration of the string will be high. अब जो thick strings होती हैं वो जिनका डायमीटर ज़्यादा होता है वो वाइब्रेट स्लोली करती हैं एज कंपेयर टू द थिन स्ट्रिंग. अब ये वाइब्रेट स्लोली करती हैं और इनकी लोअर फ्रीक्वेंसीज होती हैं. मतलब जो थिक स्ट्रिंग्स होती हैं जिनका डायमीटर ज़्यादा होता है वो स्लोली वाइब्रेट करती हैं और उनकी लो फ्रीक्वेंसीज होती हैं एज कंपेयर टू द थिन स्ट्रिंग्स. मतलब जो थिन स्ट्रिंग है वो ज़्यादा वाइब्रेट करेगी और जो थिक स्ट्रिंग है वो कम वाइब्रेट करेगी. तो जो थिक स्ट्रिंग हमारी कम वाइब्रेट कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी और हमारी थिन स्ट्रिंग जो ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी. बच्चों, इसके साथ ही हमने लेसन नंबर 18 कंप्लीट कर लिया है. अब हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. थैंक यू. बाय बाय.